अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मिस अना सबा खान और मेरे साथ मौजूद हैं मेरी अम्मी। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। नमस्ते, सत श्री अकाल। और ये है तबस्सुम, इनका नाम है तबस्सुम। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तबस्सुम की स्पेशलिटी ये है कि इनकी पैदाइश इंडिया की है। नए सब्सक्राइब हमारे साथ जुड़े उनके लिए बताता चलूँ। और इनकी शादी 85 ये हाँ 82 83 में जो है ना, ये यहाँ आई हैं। मतलब शादी जो है वो आफ्टर 80 हुई है। ये वो उनका क्या है, मैका है, या मैका है, लखनऊ। और ये कज़न मैरिज है। और मतलब कि वहाँ से अभी तक के लिंक है माशाल्लाह से, यानी कि कुछ रिलेटिव्स यहाँ हैं, कुछ इंडिया में हैं। तो बहुत अच्छी पॉजिटिविटी है, आपस में बहुत एक दूसरे का जो है ख्याल करते हैं। वीडियो कॉल्स पे भी बात वगैरह हो रही होती है। चलते हैं वीडियो की जाने, फिर करते हैं। वीडियो का टाइटल है When a foreign couple drank lassi in India, Pakistanis were shocked by the sailor's gesture. Drank lassi. स्टार्ट करते हैं वीडियो। Good morning and welcome back to Delhi. We starved ourselves this morning because today we're gonna go on an Indian food tour. We are so excited. We've got like 4 hours of just eating Indian food all through Delhi. So usually we would do a food tour and we would actually do them like self-led because we like to just like explore the food on our own. But there's so much to learn about Indian food and we just decided that we need to like get an expert involved who can teach us. So we're partnering up with a chef's tour today to check out all the delicious treats that Old Delhi has to offer. Met up with Gajendra, who is going to be our tour today from a chef's tour. We're going to eat all day, yeah? Yes, we are going to visit so many different food joints where we are. मेरा बड़ा दिल करता है इंडिया में जाने का, क्योंकि मैं कहाँ जाना है आपने? मुझे मुंबई जाने का मेरा दिल करता है। मैं बिग बॉस में जाऊँ। बिग बॉस में जाने का प्लान। जी जी। अच्छा, लास्ट पे मुझे सिर्फ ये बता दे कि अगर वहाँ आप विजिट करती है तो वहाँ के फूड की बात करें तो कैसा फूड, कौन सा Street food. in the old Delhi where the street name is the Chandni Chowk. So let's begin the trip. Awesome. So our first item is jalebi, which I understand is like a sweet donut-ish thing. And this restaurant's been operating for like almost 150 years. Kind of like donuts. They look like they're made exactly like donuts. It's hot here too. I cannot imagine working here. Holy smokes, it's like a sugar syrup. The second one. Amazing. I love momos. I love momos. मोमोज तो यहाँ No, मैंने सुना इंडिया बड़ा पाव आए है चांद. और पानी पूरी। बस It's almost like maple syrup. It's just the sugar syrup. Yeah. Is that right? Yes, sugar syrup and they add some honey into it. You only need one because that cannot be good for you. Okay, so a bunch of our friends who either are from India or have been to India told us we have to try this. And it's called pani puri. Yeah? Pani puri. It's a lot. It's a big bite. It's like filled. Look at that. It's filled in there to the brim. Whoa. I swear, it like exploded in my mouth. I felt like all the flavor came at once. ये फूड स्ट्रीट इनकी बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा। अगर मैं इंडिया गई तो उनकी फूड स्ट्रीट लाजमी ट्राई करूंगी। और अगर डोसा की बात करें, पानी पूरी है। डोसा, पानी पूरी, ये सब मैं ट्राई कर चुकी हूँ। लिटरली अमेजिंग। Tasting that like breading, it's stiff, it's hard. So I felt like it'd be like so soft and mushy because of Ah, okay, so this one has yogurt in it. Yeah, and sweet. And sweet. I like this one better. Because it's sweet. There's apple. This one. That one is a whole experience. I think two's enough for me though. Two enough for you? yeah, Two's enough for me. for a snack. For a snack. I could probably do 3 more. The next dish is paranthas, and they have this bread that they flatten and they throw in a mixture of spices. खास सवाल ये है कि अगर आपको कभी इंडिया विजिट करने का मौका मिले तो किन सिटीज को एक्सप्लोर करेंगे आप? लखनऊ लखनऊ मुझे पसंद है। ओके, ठीक है, इनका मुंबई भी जबरदस्त है। ठीक है। और दिल्ली दिल्ली, हाँ मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो दिल्ली से है। दिल्ली Here is we have some sauces and the curries. First one is the tamarind and banana sauce. The second one is the potatoes and the green peas. Third one is the mint and coriander sauce. And we call it cottage cheese. It's got paneer in it. This is how I eat it. Let's try. What do I want first? I think I want
combo. No. So we also got lassi, which is super commonly drank here, and it's like a yogurt-based drink, supposed to be a little bit sweet. मुंबई, ठीक है, दिल्ली, ठीक है। इसके अलावा इनका एक वो है जहाँ पे पानी नहीं जहाँ पे वो पानी वाला भी जो बीच है, जुहू बीच काइंड ऑफ कुछ एक जगह है, गोवा एग्जैक्टली, ठीक है। दिल्ली. And it's just like served alongside meals, very commonly. But what's not common about this one is that it's actually served in a clay pot, and this is how they used to be made, but now like more commonly you see them in like flavor. Oh my god. Oh, it's so good. It's sweet. It's very cold. It's kind of like milk, but it's way thicker and really sweet. That is amazing. It's like dessert. Kind of walking right now, and it just still blows my mind like how intricate and wide Chandni Chowk is. There's so much to see, so many different shops and so many different. दिल्ली, मुंबई मुंबई और लखनऊ. लखनऊ, आप लखनऊ जाना चाहेंगे? दिल्ली नहीं जाएंगी? मुंबई? दिल्ली भी, मुंबई भी, लखनऊ भी. different alleyways and tons of people shopping. Like even like the smallest little store is packed with people. Okay, I think she likes that the most. So we're walking and getting closer and closer to the spice market. And how you can tell that you're near the spice market is number one, you can see that they're just everywhere around this area. Wow. So welcome to Asia's biggest spice market. Wow. So this is the rabdi with the pistachios and almond on that. Look how beautiful this is. It's like 2 almonds and some pistachios. Let's try. Oh my god. Oh, I think this might be my favorite thing we've had today. It's definitely like a dessert. It kind of reminds me. It's like condensed milk. Did you say that earlier? Twice. Okay then. Like it's like kind of crunchy, right? Mix that all into it, and it gives you this delicious texture. Yum. This dish is normally kept cold and I never would have picked this up on my own. So this is the thing which is called dahi bhalla. Dahi, as you can see, this is the yogurt, the white one. This one is the tamarind sauce. Oh. Some spice. And then there is some black thing you can see. This is also a mix of spices. I'm a little nervous. Ooh. Tangy. Yeah. A little bit of heat, just ever so gently, but it's cold. कल्पना कीजिए कि एक विदेशी जोड़ा भारत की यात्रा पर है, जो स्थानीय संस्कृति का अनुभव करने के लिए उत्साहित है. वे एक चहल पहल भरे बाजार में टहलते हैं और एक लस्सी की दुकान देखते हैं. उत्सुकतावश वे इस पारंपरिक पेय को आजमाने का फैसला करते हैं. जैसे ही वे अपना पहला घूंट लेते हैं, उनके चेहरे खुशी से चमक उठते हैं. लस्सी मलाईदार, ताज़ा और स्वाद से भरपूर होती है. वे विक्रेता के साथ अपनी खुशी साझा करते हुए मुस्कुराए बिना नहीं रह पाते. फिर वह पल आता है जिसने आसपास के सभी लोगों को चौंका दिया. सिर्फ अपने पेय के लिए भुगतान करने के बजाय जोड़ा एक उदार टिप देता है, जो अद्भुत अनुभव के लिए उनका आभार व्यक्त करता है. लेकिन इसके बाद जो होता है वह अविश्वसनीय है. लस्सी विक्रेता अतिरिक्त पैसे रखने के बजाय अपना हाथ हिलाता है और आग्रह करता है कि वे कुछ पैसे वापस ले लें. वह मुस्कुराते हुए कहता है कि दयालुता को साझा किया जाना चाहिए और उसकी सराहना की जानी चाहिए, खासकर उन आगंतुकों के साथ जो उसकी संस्कृति का आनंद ले रहे हैं. इस दिल को छू लेने वाले आदान प्रदान को देखकर आसपास के पाकिस्तानी जनाब, इस स्ट्रीट फूड के हवाले से भी इंडिया बड़ा रिच है. यानी कि इतनी वैरायटी है. पानी पूरी हो गया, मोमोज हो गया, डोसा हो गया, अच्छा मिठाइयाँ हो गई, अच्छा बेल पूरी हो गया, इडली हो गया. इतनी चीज़ें हैं और मज़े की बात है कि हर इलाके में वैरायटी चेंज है. अच्छा, जब बाहर के लोग आते हैं तो ज़्यादातर हमने ये सुना हुआ है, हमें ऐसा लगता है कि अंग्रेज़ जो है उन्होंने ज़्यादातर फीकी चीज़ें खाई हैं, मसालेदार, उनकी इतना स्पाइसी नहीं होता उनका ना.
तो इंडिया में जब वो आते हैं और इस तरह की चटपटी चीज़ें खाते हैं तो हैरान हो जाते हैं। मतलब उनका एक्सप्रेशन कितना ज़बरदस्त, मतलब वो खा के जो है ना वो बहुत ओवर एक्साइटेड हो रही है। वो उनके लिए एक नई चीज़ है कि मतलब लस्सी कॉमन, हम लोगों के लिए कॉमन है। तो ये देखिए कल्चर में इंडिया और पाकिस्तान में लस्सी सबको पता है, लेकिन जब फॉरेन से कोई आ रहा है तो उनके लिए वो एक अमेजिंग चीज़ है कि मतलब कोई इस तरीके से ना नई चीज़ इस तरह की वीडियो देख के मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि हम इस खित्ते में हैं तो थोड़े खुशनसीब हैं कि हमारी ज़बान पे टेस्ट आ रहे हैं। वहाँ पे इतना नहीं है। बाहर कंट्रीज में वो जब ये मसालेदार चीज़ें खाते हैं तो वो हैरान होते हैं कि यार इतना टेस्ट भी है दुनिया में। अब जैसे जलेबी है, जलेबी के ऊपर शहद डाल के भी बिकती है इंडिया में, और जलेबी के ऊपर शायद आपने सुना होगा रबड़ी भी डलती है। हमारे यहाँ नहीं है ये सिस्टम। जलेबी इतनी मोटी वाली इंडिया में बिकती है। मुंबई में वीडियो में देख रहा था, ब्राउन कलर की जलेबी, उसके ऊपर रबड़ी डाल। वही हम बोलने वाले थे कि जब ज़्यादा ब्राउन हो जाती है। मुझे जलेबी से याद आया कि जो मेरे पापा जो है ना वो जलेबी में दूध वगैरह डाल के, एक तो वैसे ही वो आपको पता है वो मीठी होती है, उसके अंदर जो एक मुहावरा भी है कि तुम जलेबी की तरह सीधे हो, या इस टाइप का मुहावरा सुना होगा आपने ना। तो मतलब कभी फन में इस टाइप के मुहावरे भी यूज़ हो रहे होते हैं कि वो जलेबी ऐसे राउंड एंड राउंड है ना, तो किसी को अगर कुछ कमेंट्स पास करना है तो यूँ करके भी कह दिया जाए कैसे सीधे हो तुम, जलेबी की तरह तो सीधे नहीं हो। तो जलेबी में अगर दूध ऐड करके एक डिश बनती है, वो भी कहते हैं कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। जलेबी दूध में जैसे भिगो के और फिर वो खाते हैं, बहुत ताकतवर होती है बोलते हैं। और आपने जब इंडिया में थी, बचपन आपने गुजारा है, तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें ट्राई की? आप अपना अनुभव बताएं, एक्सपीरियंस बताएं, अपना तजर्बा बताएं। बस तजुर्बा क्या बताएं, हमें हमारी जैसे अम्मी सारा करती हैं। उसका छोटे से थे वो इतना याद है कि गली में निकलने कोई चीजें हाँ, जैसे बाहर निकले मिठाई की दुकान थी छोटी से, वो इतना थोड़ा सा हमें याद है कि वो बर्फी के बहुत शौकीन थे हम। बर्फी के तो हम जाते थे तो पैसे ऐसे छोटे से कि हमारा हाथ भी नहीं पहुंचता था ऊपर, वो ऐसे हाथ करते थे, वो कहते थे बर्फी दे दें। वो फौरन ना वो पत्ते होते हैं ना वहाँ पे, उसमें रख के हरा हरा होता था, वो हाथ में दे देते थे अपने खाते हुए टहलते हुए। एक आप वो भी बात बताती है ना, जैसे कि हम कोई एक फल था वो हम तोड़ के खाते थे, तो मुझे लगता है आप जो बताती हैं कि उसके अंदर बहुत सारे बीज होते थे या क्या, तो कहती हैं बहुत वो मुझे लगता है ये जैसे बताती है ना वो ताज़ा इंजीर होगा। कभी ये बताती हैं ना तो आप इनसे पूछते हैं कि क्या चीज़ थी। वो इंजीर के ही तरह फल होता है, दरख्त से गिरता है ना जब, तो उसको यूँ खोलते थे ना तो उसमें से भुनगे भुनगे से जैसे निकलते थे, लेकिन वो इंजीर के ही तरह सूखे हुए आम देख रहे हैं ना तो वो इंजीर ही है। वो उस वक्त फ्रेश आपने, हम लोगों ने फ्रेश भी खाई हुई है। सही, यानी कि हमें आप ये देखें उसकी जो है ना ड्राई फॉर्म मिल रही होती है, तो ताज़ा जो फल है वो तो उससे मतलब वो आइस के लिए बहुत अच्छे होते हैं, आंखों के लिए। इंजीर की अगर हिस्ट्री पढ़े ना बहुत तो जबरदस्त कहते हैं कि बड़ा ही यूनिक अपने आप में, इसके अंदर मक्खी जाती है फिर वो मर जाती है पूरी, इसके वो यही जो हम आपको बता रहे हैं, छोटे छोटे ताजे गिरे हुए होते हैं ना, तो वो उसमें जब खोलेंगे तो मक्खी जैसे भुनगे उड़ते थे छोटे छोटे से, तो उसको कहते थे ये हम बड़े कि उसको फौरन बंद करो और खा लो। आपने कीड़ों वाला तो नहीं खा लिया? नहीं, वाकई इंजीर के अंदर कीड़ा जाता है मक्खी की तरह, और उसकी जिंदगी बस उतनी ही होती है। अच्छा, फिर उसके अंदर वो अंडे देता है। अच्छा, फिर जब वो अंदर जाता है ना इंजीर के अंदर, उसके पर टूट जाते हैं। मतलब इसकी आप गूगल पे सर्च हिस्ट्री जो उसकी है ना, आप हैरान हो जाएंगे कि एक नाम उसका हम भूल गए अभी इस वक्त, नहीं तो उसका नाम हमें पता था जब, अब यहाँ पे इंजीर बोल रहे हैं, लेकिन वो ये उसके अंदर घुसता है, उसके पर टूट जाते हैं, फिर वो निकल नहीं सकती, वही अंडे देती है, उसकी वही जिंदगी है। और इंजीर में दाने दाने हैं। बाकायदा इंजीर के बारे में एक और चीज़ कही जाती है, आप लोग भी सुनेंगे कि इंजीर के बारे में एक कंट्रोवर्सी है, क्या वो वेजिटेरियन है इंजीर का फल, या क्या कहेंगे दूसरा नॉन वेज, यानी उसमें मकड़ी है, उसमें कीड़ा है एक, तो कई दफ़ा वो नॉन वेज भी लोग कहते हैं और वेज भी कहते हैं, इस पर भी कंट्रोवर्सी तो मतलब, लेकिन वो जो है ना अगर वेज और नॉन वेज का कॉन्सेप्ट तो ये है, लेकिन वो उसके ना हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं हेल्थ बेनिफिट्स। आपने क्या क्या खाया इंडिया स्ट्रीट फूड का बताएं? कराची में जो मिलते हैं पानी पूरी खाई, यहाँ पे हाँ हम गोलगप्पे कह रहे होते हैं, तो जैसे ना मैं जिस तरीके से आपको बता रही हूँ कि स्ट्रीट्स पे ना मैं शाय जैसे मैं रेस्टोरेंट वगैरह में जाऊँगी ना तो मैं वहाँ पे भी इतना वो कर रही होती हूँ कि शाय कर रही होती हूँ, लेकिन स्ट्रीट फूड में ये कि गोलगप्पा खाने में अब मेरी जो अगर जो शाय नहीं कर रहा था उसके लिए ये होता है कि बस यूँ लिया और मुँह में फ़ौरन, तो हम लोग ना यूँ करके ऐसे खा रहे होते हैं, शाय कर रहे होते हैं, तो बल्कि मुझे डांट भी पड़ जाती है इस चीज़ में। अच्छा, मतलब खुल के जियो। एक सेकंड आप जब गोलगप्पा खा रही हैं और नॉर्मल खाएंगी तो कोई नहीं देखेगा। हाँ। आप चाह रही हैं कि कोई ना देखे और मैं गोलगप्पा खाऊं। आप जब ये कर रही तो स्पेशली लोग देखेंगे।
अब समझिए हाँ। सही अब सही उलट उलट यानी कि ना अच्छा यहाँ के गोलगप्पे ऐसे होते हैं कि एक पूरा बंदा खा भी नहीं सकता है। वहाँ के थोड़े वो ना छोटे होते हैं ना, quantity- पूरा मुंह में वही आ ना वो जाता है। बढ़ाते चले जा रहे हैं। हाँ। उसका जो साइज है ना, अगर जैसे छोटा गोलगप्पा होगा तो चले आप फेस के हिसाब से जिसका माउथ जो भी जितना ओपन हो रहा है बंदा खा लेगा, लेकिन है ये चीज़ें होती अच्छा हैं। वड़ा पाव खाया है आपने? आपने खाया वड़ा पाव क्या चीज़ होगी? छोलों की चाट तो नहीं नहीं है? नहीं, वड़ा पाव होता है कि एक बंद टाइप होता है, उसके अंदर पकोड़ा डला हुआ होता है, एक मिर्ची सी होती है। मुझे याद आ गया, वो तो नहीं है, आलू चाप तो नहीं? वड़ा पाव होता है एक बंद होता है डबल रोटी, अच्छा। उस डबल रोटी के अंदर एक मोटा सा गोल सा पकोड़ा टाइप होता है, वो डला होता है, उसमें मिर्चे कोई डाल देते हैं, एक तली हुई मिर्च डाल देते हैं बस। अच्छा, तो कहते हैं वड़ा पाव मुंबई में बहुत मशहूर नहीं, है हमने वड़ा नहीं पाव। खाया। और यहाँ पे- इडली चावलों की बनी हुई होती है, चावलों की, उसको सेकते हैं, सिर्फ स्टीम होती है। मोमो भी स्टीम से बनते हैं, इडली हाँ, मोमोज की तो चावलों मैंने की टिकिया देखी सी है बनी हुई है। रेसिपी। अच्छा, एक चावलों के आटे की रोटी बनती है जिसको डोसा कहते हैं, बिल्कुल पतली सी पापड़ की तरह। हाँ वो तो हमने खाई है। वो भी ना उसके लिए भी वो ट्रिक सिंधी जरूरी है। लोग थे जहाँ पे अच्छा। हमारे किराएदार थे, तो उन्हीं ने बनाई थी एक दफ़ा, तो वो दे के इसके गई साथ थी एक हमें। चटनी होती है, सांभर की, सांभर चटनी, कोकोनट की चटनी। हाँ वो ये साउथ चटनी, इंडिया में ज़्यादा हाँ, फेमस है। चटनी, और वो लेके आके हम लोगों को उन्हीं ने खिलाया था। अच्छा, पहली दफ़ा हमने उन्हीं घर खाया और आखिर दफ़ा। और लखनऊ के आसपास जो है, जो मुस्लिम ज़्यादा है लखनऊ में भी, तो लखनऊ के आसपास ज़्यादातर कबाब बहुत चलते हैं। वैरायटी कबाब डिफरेंट की कबाब बहुत है कबाब वहाँ बहुत पे। है लखनऊ। तो खैर वहाँ पे next ऐसे year में बुंदू कबाब वाले टुंडा बहुत कबाब। मशहूर- हाँ, ये बहुत मशहूर मशहूर। थे। मतलब ये कि स्ट्रीट फूड्स की वीडियो ही हाँ। देख के हम इतना खुश हो रहे होते हैं, इंडियंस हो या पाकिस्तानी हाँ। हो, तो मतलब लोगों की मेहनत भी नज़र आ रही होती है, फिर डिफरेंट वैरायटी फूड हाँ। की। तो इंडिया फूड और कल्चर के हमारे से बड़ा रिच है। हाँ। दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़। अल्लाह